Now the next topic of discussion is standard form of rational numbers. We will discuss a question here related to this topic. If you are asked, if you are given this rational number minus 12 upon 54 and you are asked to convert this into standard form, what you will do is take out the HCF of these two numbers, that is numerator and denominator. Take out the HCF of these numbers. I have taken out the HCF using division method. I think you all know how to take out the HCF using division method. You all must have discussed this in 6th class. So when I took out the HCF, I got the HCF value as 6. So divide the numerator and denominator both with the HCF value. जो भी आपको HCF value मिलेगी उससे आप numerator और denominator दोनों को divide करेंगे. Okay, see here, मैंने HCF division method से निकाला. If you are not comfortable with this method, you can use prime factorization method also. It's up to you. So divide minus 12 by 6 and 54 by 6. You will get the value minus 2 upon 9, which is the standard form of minus 12 upon 54. So this is how you convert a given rational number into its standard form. Practice more and more questions related to this topic. Second topic is comparison of rational numbers. Which of the following is greater, minus 6 upon 11 or 5 upon minus 8? Now in this topic there are many types of questions are there. You may there are questions in which you have been asked like this, that which of the given rational number is greater, or they can ask you also that which among the following is smaller, or arrange into descending order, or arrange into ascending order. So many types of questions are there. So let us discuss this one. यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स थे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेक दीज रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होना चाहिए. मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव. सो मैंने देखा कि माइनस 6 अपॉन 11 में माइनस 6 अपॉन 11 कर दिया. 5 अपॉन माइनस 8 में यहाँ पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर नेगेटिव था, माइनस 8 था. सो मैंने दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे. उस नंबर्स के हिसाब से होता है कि जो भी नंबर दिया है आप कैसे उसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना सकते हैं. सो माइनस 5 अपॉन 8 मिल गया. अब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे. सो टेक द एलसीएम ऑफ 11 and 8 that you will obtain as 88. Okay, now make sure that the denominators of both the rational number is 88. अब जो LCM वैल्यू आती है, ऐसा करिए कि आपको जो भी रेशनल नंबर्स थे इन दोनों का डिनोमिनेटर वही LCM वैल्यू बन जाए. दैट मीन्स आपकी दोनों की डिनोमिनेटर 88 हो जाए. सो सी माइनस 6 अपॉन 11 आपका पहला रेशनल नंबर था. When I multiplied the numerator and denominator both by 8, I got the denominator value as 88 and numerator as minus 48. Done. In case of minus 5 upon 8, I multiplied the numerator and denominator with 11. So that means I got minus 55 upon 88. In both the cases, I got the denominator as 88 ना. So that means condition done. हमें LCM value को denominator बनाना होता है. So okay, done. Now see. As the denominator is same in both the cases, you don't have to worry about it. You just compare the numerators. अब numerators को आप compare कर लीजिए. माइनस 48 बड़ा होता है कि माइनस 55. नेगेटिव नंबर्स के केस में, नेगेटिव इंटीजर्स के केस में जो नंबर जितना छोटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी जितनी छोटी होती है वो उतना बड़ा कंसिडर होता है. सो 48 आपका छोटा होता है नॉर्मली. अगर देखिए साइन को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन क्योंकि माइनस 48 है दैट मीन्स माइनस 48 विल बी ग्रेटर दैन माइनस 55. माइनस 40 इज ग्रेटर दैन माइनस 55. अब देखिए अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. माइनस 48 मतलब माइनस 48 अपॉन 88 था, और माइनस 55 मतलब माइनस 55 अपॉन 88 था. अभी कंपेयर करिए, माइनस 48 अपॉन 88 आपने किस रेशनल नंबर को ये बना दिया था? आपने माइनस 6 अपॉन 11 को ये बना दिया था ना. तो इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिए. साइंस आप वही रखते चले जाएंगे. और माइनस 55 अपॉन 88 को आपने किस रेशनल नंबर को माइनस 55 अपॉन 88 बना दिया था? 5 अपॉन माइनस 8 को. क्वेश्चन में से देख के रखते हैं. फाइन. सो माइनस 5 अपॉन 8 दैट मीन्स आपका माइनस 6 अपॉन 11 ग्रेटर होगा 5 अपॉन माइनस 8 से. सो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. अगर आपको दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है उनके बीच में अगर अमाउंट दिया है कि 3, 4, 5 कितना निकालिए तो उस हिसाब से निकालेंगे. अगर कोई अमाउंट नहीं दिया है तो उनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं आप सब बताएंगे. ओके, सी लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन हियर. I have taken a question, list 3 rational numbers between minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3. 2 rational numbers I have taken here, minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3. And it is said, देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि 3 rational numbers इनके बीच में निकालिए. जब नहीं दिया होगा तो जितने आते हैं आप सब निकालेंगे. Fine. So what you will do is
लेट अस राइट दीज रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 30. अब कुछ ऐसा करिए कि दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाए. सो मैंने देखा कि अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और -4, अब देखिए जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं. सो मैंने ऐसा किया कि मैंने -4/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हमें -24/30 मिल गया. और दूसरे वाले रेशनल नंबर के केस में हम क्या किया, -2/3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें -20/30 मिल गया. बेसिकली हमारा मोटिव था कि हमें डिनोमिनेटर 30 मिल जाए, दोनों में डिनोमिनेटर सेम मिल जाए. सो हमने देखा कि 5 के टेबल में भी, क्यों 30 ही बोला मैंने, हम ऐसा नंबर यूज़ करते वो कंसिडर करते हैं कि जो कि दोनों के टेबल में आता हो. 35 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में, तो इसलिए 30 हम बना सकते हैं. सो अब देखिए दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम हो गया. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द न्यूमरेटर्स. -24/30 -20/30 है. इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आप देखिए -24 से पीछे चलिए, -23/30. अब डिनोमिनेटर तो आप 30 रखेंगे ना, सब में सेम रहेगा. -23/30 -22/30 -21/30 और -20/30 एज इट इज लिख देंगे. सो देखिए 24/30 और 20/30 को मत नोटिस करिए, बीच में 1 2 3 रेशनल नंबर्स आ गए ना. यस इट इज डन. अब जो भी इसमें से लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेंगे. सो हम कैंसिल करते हैं, हमने फाइनल वैल्यू में क्या मिली, -4/5 -23/30 -11/15 -7/10 -2/3. अब इन दोनों के बीच में से 3 निकालने हैं, तो ये जो बीच में 3 आए हैं ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, जो भी आपसे डिस्कस हुए हैं, यू विल सॉल्व देम. Now there is one more topic in which you are asked to represent the rational numbers on number line. Watch all the videos related to that which have been provided to you at the time we were discussing our chapter, and watch all the previous videos related to this chapter. Watch this video also very carefully and give your test with full dedication and honesty, and most important, be punctual about the time. So that's all for today. All the best to you.